everyone, Cheryl here. Today we are going to discuss about how to behave in an interview. Many a times we feel कि मैंने जितने भी सवाल थे वो सब अच्छे से दिए थे. I was quite confident. I did not fumble. जब भी उन्होंने पूछा I was quite good at it. मेरा qualification भी अच्छा था. So why did not I get selected? तो उसका जवाब एक ही हो सकता है because of your non-verbal. Non-verbal में आते हैं आपके gestures, your confidence, your attire. Maybe you were not very neat. And the expressions. तो today we'll be discussing about how to behave. Firstly मैं आपको उसके लिए बता देती हूँ कि usually when you enter into an interview room तो 100% में से 7% is always for what you say, just 7%. Then आपका 38% depends on your qualification and the last is highest 55% depend करता है कि आपकी non-verbal communication कैसा है, like your gestures, expressions. So that depends the most. So today we'll be talking about how to behave in an interview. So here we begin. So the very first thing that you have to take care of is knock, greet and ask. So whenever you are being called in an interview room, so first knock the door. तो usually जब आप knock करोगे तो सामने से आवाज आ जाएगा please come in. But अगर नहीं आता है, so you have to knock, you have to peep and ask may I come in sir? And greet. The moment you see them, greet them, good morning, good afternoon, whatever the time is, you have to greet them immediately. So the rule I'll say here is you have to smile and you have to be confident because that's your first impression. He or she is going to be looking at you for the first time. So your first impression will be the last, I would say. So you have to be confident. उसी time पे आपको बहुत अच्छी सी smile देकर उन्हें कहना है good morning sir, may I come in? The second point here would be don't sit without permission. मतलब जब आप एंटर करोगे तो यूजुअली इंटरव्यूअर वुड से कि प्लीज हैव अ सीट. बट अगर वो नहीं कहते तो वेट फॉर 1-2 seconds एंड देन यू कैन आस्क देम पोलाइटली सो प्लीज मे आई हैव अ सीट. ऑब्वियसली इट्स नॉट ए कॉलेज वाइवा कि वो आपका इंटरव्यू खड़े खड़े लेने वाले हैं तो वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे ही. सो आस्क देम पोलाइटली मे आई हैव अ सीट. वो जस्ट रुके होंगे मे बी कि आप पूछते हो कि नहीं या यू जस्ट बम्प इनटू योर सीट डायरेक्टली. थर्ड पॉइंट इज योर पोस्चर. पोस्चर आपका ऐसा होना चाहिए इट शुड बी प्लीजिंग टू द अदर पर्सन. आप किसी के सामने बैठे यू डोंट हैव टू जस्ट लाई डाउन. आपको स्ट्रेट बैठना है. तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट सिट ऑन द एज ऑफ द चेयर. व्हेन यू सिट ऑन द एज यू प्रेफर बात करते करते यू लीन डाउन. सो डोंट डू दैट. यू सिट कंफर्टेबल बट इतना आराम से भी मत बैठ जाओ समवन इज जजिंग यू देयर. एंड डोंट स्लाउच. डोंट स्लाउच मीन्स यू डोंट हैव टू ऐसे नहीं बैठना है. सिट स्ट्रेट, कीप योर हैंड्स ऑन योर लैप. And the one thing you have to do is don't cross your legs. Most of the girls have this habit, they cross their legs. वो अपने चेयर पे जो हैंडल रहता है उस पे ऐसे हाथ रख देते हैं. बॉयज को आदत रहती है कि ऐसे बैठ गए. प्लीज डोंट डू दिस थिंग्स. इंटरव्यू में आप जब बैठे हो तो कीप योर लेग स्ट्रेट. आपको पैर टेबल के नीचे भी आपको क्रॉस नहीं करना. मीन्स आपके जो पैर है वो स्ट्रेट रहेंगे. यू डोंट हैव टू क्रॉस योर लेग्स एनीमोर. Then the fourth very important point is your hands. जब भी हम इंटरव्यू में रहते हैं या we are in a meeting तो हमें नहीं समझ आता कि हमें हाथ कहाँ रखें. So the best way here is you can keep it on your lap straight. और the other thing lap पे ऐसे रख दो that's also fine. But if you think कि मैं जब lap पे रखती हूँ तो I look very clumsy, ऐसा लगता है कि I'm sticking myself, तो you can also keep it on your table. But remember table पे जब आप रखते हो तो only your palm should be on the table. ऐसे रखो या ऐसे रखो palms, it's okay. But you don't have to just पूरा elbow रख दिया या पूरा हाथ रखा. And the other thing जब आप palm भी यहाँ पे रखे हो तो don't cross your fingers. When you cross means you're giving firmness inside your body. This shows that you are nervous. And interviewers are very smart. वो लोग बहुत लोगों को देखते आते हैं, जज करते आते हैं तो वो easily पकड़ लेंगे that you are nervous. So the fifth point is your gestures, your hand movements. These are very important. Hand movements जो है वो अच्छे होने ही चाहिए. So I would suggest one thing कि जब आप hand movements करते हो तो keep your open palms. मतलब when you are explaining them something तो ऐसे या ऐसे मत करो. Keep this open. This shows confidence. जब आप open palm से कुछ explain करते हो confidence दिखता है. And one more thing is hand movements. किसी को बोला तो they start इतना हाथ उनका इधर उधर जाता है. Don't do that. That looks really casual. ऐसे लगता है कि आप आपकी फ्रेंड के साथ बैठे हो, आप उन्हें पुराने किस्से सुना रहे हो, गप्पे मार रहे हो. आपकी जो बॉडी लाइन है उसके अंदर ही आपका होना चाहिए. एक हाथ बार अगर यहाँ पे बाहर थोड़ा सा चला गया that's fine. But keep it slow. The movement should be flowing towards your conversation. So the sixth very important point here is your eye contact.
अभी किसी को बोला आई कांटेक्ट, तो कुछ लोग ऐसे करते थे कीप स्टेयरिंग एट द इंटरव्यू, दैट लुक्स रियली ऑकवर्ड। मतलब ऐसा सिचुएशन मत लेके आओ इंटरव्यू केबिन में कि इंटरव्यू जो आपका ले रहा है उसे ही ऑकवर्ड लगे, उसे ऐसे लगे कि मैं कहाँ देखूँ, ये मुझे ही घूरे जा रहा है। सो कीप इट नेचुरल। मतलब अगर आपको कुछ सवाल पूछा है, यू हैव 2-3 सेकेंड्स टू थिंक फॉर इट, तो इट्स ओके। एक आध बार आपने यहाँ देख लिया, आपने अपने माइंड में रिकॉल कर लिया कुछ, तो इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। डोंट जस्ट स्टेयर एट द इंटरव्यू, ऐसे घूरते मत रहो एंड बी अटेंटिव। जब आप आई कांटेक्ट रखते हो ना, तो मेन मोटिव हियर इज you are attentive, ऐसे दिख के आता है that you are attentive, you are listening to them, and the other thing you are shows कि you are very trustworthy। तो जो trustworthy नहीं होते हैं usually, not I not say only in an interview, जब आप किसी और से भी बात कर रहे होते हो, if you are not keeping your eye contact throughout, that shows you are not so trustworthy। मतलब आप कुछ छुपा रहे हो, that's why you are hiding your eyes। So now I'll be listing a few things towards you जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है ना इंटरव्यू। So the very first is don't play with your hairs। गर्ल्स की आदत होती है they keep on rolling their hairs, खेलते रहते हैं बालों के साथ। I will tell you you may be giving wrong signals to the interviewer। उसे लग सकता है कि आप फ्लर्ट कर रहे हो, never knows। Then the second important thing that you do not have to do is don't touch your face again and again। कई बार हमें बात करते करते आदत होती है, हम ऐसे पसीना पोंछते हैं या हम बालों को ऐसे खुजा लेते हैं। So don't touch your face, don't scratch your hair, that looks really unhygienic। The other thing that you do not have to do is don't drag the topic। कई बार आपको MBA इंटरव्यू में तो ऐसा मोस्ट टाइम होता है, जॉब इंटरव्यू में इट मे बी रिलेटेड टू द जॉब ऑपरेशंस जो आपके हैं उससे रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाएंगे। बट MBA का जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे या जो पॉलिटिकल अफेयर्स अभी करंटली कंट्री में चल रहे हैं उससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा सवाल, आपका ओपिनियन पूछा जाएगा। सो डोंट ड्रैग द टॉपिक, कीप इट शॉर्ट। जो भी आपको पूछा है, आपका जो भी सजेशन है 1 to 2 लाइंस में उसे खत्म करो, उसे कहानी के तरीके से बढ़ाते मत जाओ। जब आप कम बात करते हो एंड यू आर पर्टिकुलर व्हाट यू आर सेइंग, इट शोज कि आपके थॉट्स जो है वो क्लियर है, यू आर वेरी अप टू डेट अबाउट द सिचुएशन। आपको जो बोलना है वो आपको अच्छे से पता है। And the fifth point I will say never do when you are in a conversation is don't carry your phone। If you don't have anyone with you when you enter into an interview, तो ठीक है बाहर नहीं रख सकते, आई अंडरस्टैंड, कैरी करो बट अपनी बैग में रखो, हम उससे पैर के पास अपनी बैग आप रख सकते हो आराम से। डोंट कीप योर फोन ऑन द टेबल या डोंट कीप इट इन द पॉकेट। इट हैज बीन प्रूव्ड कि कॉमन मैन जो होता है वो अपना फोन दिन में 110 टाइम्स चेक करता है। सो प्लीज डोंट कीप इट ऑन द टेबल इटसेल्फ। अगर आप गलती से टाइम देखने के लिए भी अगर आप चेक करते हो तो इट्स लाइक यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन। नॉट ओनली इन एन इंटरव्यू, आप कहीं और भी अगर कन्वर्सेशन में बैठे हो तो डोंट कीप चेकिंग योर फोन, दैट लुक्स रियली वेरी बैड। And the sixth point here that you do not have to do in an interview is don't be late। Don't ever be late and don't give excuses when you are late। अगर आप आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ कहीं जा रहे हो और आप हर दिन लेट होते हो, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, शी इज नॉट गोइंग टू जज यू और ही इज नॉट गोइंग टू जज यू। बट आप इंटरव्यू में जा रहे हो एंड देयर यू आर लेट, that shows that you are undisciplined, you are unorganized and you're not respecting someone's time। And the seventh point that I hate the most, that is really irritating to me is काफी लोगों को मैंने देखा है कंटिन्यू टैप देयर फीट, कंटिन्यूसली वो टैप करते रहते हैं, या फिर अगर उनके हाथ में पेन है तो वो टेबल पे टक 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 बजाते ही रहेंगे। दैट्स रियली इरिटेटिंग। एंड कुछ नहीं तो वी डू दिस। What are you doing man? You are in an interview। I would say कि आप कभी लेक्चर रूम में भी बैठे हो या किसी से नॉर्मली बात करने में बैठे हो, so don't do these things। It shows कि आप जानबूझ के किसी को इरिटेट करने के लिए ऐसा कर रहे हो या फिर आपकी आदत है कि आप दूसरों का अटेंशन आपकी तरफ ड्रॉ करना। That really shows that you are very nervous and you are undisciplined। So here we covered everything, how you should be behaving in an interview, आपको बैठना कैसे है, what should be your posture, आपको हाथ कैसे रखना है, A to Z हमने सब कुछ कवर किया। So next video will be coming up will be of what should be your attire in an interview, आपको पहनना कैसे है for girls as well as for boys। So thank you very much for listening with me। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना and thank you।